Dear students, Assalamu alaikum. Welcome you in the course of Educational Policy and Planning, MA Education Leadership Management Semester 2. Dear students, in this session, I will discuss about the implementation, monitoring and evaluation of educational plans and policies. This unit is very important and it is a part of planning process. And it is very necessary for the successfulness of the policy planning process. First of all, I will discuss the key components of successful implementation. There are three major key areas or key steps to successful strategic planning and implementation. Number one, commitment of personnel working in education. Number two, credibility of educational personnel and process. And number three, thorough communication, unbreakable communication. These are three very important and key successful steps for implementation of policies and plans. Number one, I will discuss in detail one by one. Number one, commitment. Commitment by the leaders must include an adherence to fulfill and thorough process of strategic planning. Dear students, strategic planning is always about the future needs, and future planning is always done to keeping in view the future needs, यानी जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस डिपार्टमेंट या उस महकमा के विजन के मुताबिक ये की जाती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. So there must also be a commitment to implementing the strategies recommended by the strategic planning committee. और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन पर अमल करना ज़रूरी है. द लीडर्स शुड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज एंड कमिट एलोकेशंस टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान एट द लेवल दैट इट इज़ डूएबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी. एज one person has put it, to commit to plan is to commit to change. Very important saying. जो उस महकमा का लीडर होते हैं, टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, उनको प्रोग्राम्स और सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन एलोकेशंस ऑफ फाइनेंस की उन्होंने कमिटमेंट की होती है, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उस प्लान को उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए. और जो डूएबल से एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट होती हैं, इट मीन्स जब वो फाइनेंस मिल जाए और उसके उन अफराद की इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जीक्यूशन हो जाए, तो फिर ये डूएबल से इम्प्लीमेंटेबल या एक्टिविटी की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं. और ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर, मसलन फेडरल लेवल पे, सूबा लेवल पे, ज़िला लेवल पे, तहसील लेवल पे, एंड सो ऑन. So as a one person has said, the commitment to plan is to commitment to change. क्योंकि प्लान्स जो बनाए जाते हैं हमेशा चेंज लाने के लिए बनाए जाते हैं. So जो इनकी कमिटमेंट होती है वो चेंज की कमिटमेंट होती है. दूसरी अहम जो इसकी
the second important characteristics is credibility. So credibility is created and maintained by three guidelines. Number one, representativeness, participation, adherence of complete process and clear documentation. इसका मतलब ये है कि आप रिप्रेजेंटेटिव लोग जो उस डिपार्टमेंट के, उस शोबे के, उस फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव, वो इस प्रोसेस में शामिल करें और वो सही तरह पार्टिसिपेट भी करें. शामिल कर लिए यानी उनके नाम्स वगैरह शामिल हो गए, तो अब अगला मरहला ये है कि उनको को पार्टिसिपेट कराया जाए, उनकी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए और इस तरह इस मुकम्मल जो प्रोसेस है उसको यकीनी बनाया जाए और उसको क्लियर डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में महफूज किया जाए. और सबसे अहम जो स्टेप है इसमें कम्युनिकेशन. Communication is the major key for plan implementation. Leader can't implement a plan without communication. Communication mean a blog. A blog mean from top to downward, vertical, horizontal, for sister organization towards all stakeholders who are beneficiaries and sufferers of organization. इट मीन्स कि वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता होते हैं, उसके नफ़े, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता नफ़े नुकसान में शरीक होते हैं, उनको कम्युनिकेट करना है, ब्लॉग करना, ये बहुत ज़रूरी है. सो कम्युनिकेशन इज़ अ वे टू कम्युनिकेट मैसेज टू अदर्स. इट हेल्प्स द लीडर टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट. सो now I will see what is the strategic plan or plan committee. This committee contains of leadership. Number one, leadership. Number two, operating committee, उस सारे डिपार्टमेंट को या उसको ऑपरेट करने वाली कमेटी, स्टाफ, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. और वो तमाम लोग जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के जिम्मेदार होते हैं. So dear student, now what is implementation? The process of moving an idea from concept to reality. This is called implementation. In business, engineering and other fields, implementation refers to building process rather than designing process. So ये building process की तरफ है बजाय इसके के डिज़ाइन प्रोसेस. डिज़ाइन तो इब्तिदा में होता है, शुरू में होता है प्लान बनाना, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करना तो उसको आइडिया को एक्टिविटी या रियलिटी की शक्ल में तब्दील करना. सो इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स थ्री की एलिमेंट्स ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन. सो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन entails that policies are implemented by appropriate government agencies or the agencies that are created for this purpose. यानी गवर्नमेंट की ऑलरेडी जो एजेंसीज बनाई होती हैं, इदारे बनाए होते हैं, वो इम्प्लीमेंट उसको करे, या इसको ख़ास पर्पस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए अलग से भी एक मशीनरी बनाई जाती है या अलग से एजेंसीज बनाई जाती हैं, इदारे बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है. वो उस प्रोजेक्ट को जो तयशुदा पीरियड होता है उसमें वो नाफिज करके तो वो फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है. तो उस दौरानिया में इसने सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है. सो इंटरप्रिटेशन मीन्स द लेजिस्लेटिव इंटेंट, यानी उसकी कोई आइनी जमानत, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, इज़ ट्रांसलेटेड इनटू ऑपरेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस. यानी जो आइनी जमानत है या आइन या कानून की शक्ल है उसको अमली शक्ल देना, रूल्स को गाइडलाइंस की शक्ल में बदलना. एप्लीकेशन मीन्स दैट द न्यू पॉलिसी इज़ इन कोऑर्डिनेशन विद ऑनगोइंग ऑपरेशंस. और एप्लीकेशन, ज़राए की एप्लीकेशन करना, दैट द न्यू पॉलिसी में इज़ इन कोऑर्डिनेशन विद ऑनगोइंग ऑपरेशंस के साथ. सो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव and most policies will either take a long time getting off the ground or not be implemented at all. यानी हर पॉलिसी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ टारगेट्स अधूरे रह जाते हैं.
वो हमें इम्प्लीमेंटेशन और फिर उनकी मॉनिटरिंग एवेल्यूशन से पता चलता है, लिहाजा उसको फिर अगले मरहला में किसी में अगले प्लान में शामिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन द मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग मीन to keep the things on right track. So policy monitoring refers to the process of policy or planning. Monitoring refers to the process of detecting how the policy is doing. To monitor a policy, some data about the policy must be obtained. और इसमें हर मरहले में देखना होता है कि जो एक्चुअल उसकी डायग्राम है या एक्चुअल जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या जो यानी जो उसके स्टैंडर्ड है, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उसके मुताबिक है, इन दोनों को मैच करने से फिर पता चलता है। सो अ गुड इम्प्लीमेंटेशन प्लान विल सजेस्ट सम वेज इन विच ongoing data about the policy can be generated in the regular course of policy maintenance. For example, from records, documents, feedback from a program, clients, diary, entries of staff, ratings by peers, test observations and physical evidence. ये सारे वो जो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जिन पर अमल करके हमें मॉनिटरिंग करते हैं या एवेल्यूशन करते हैं, और इनकी मदद से हम उस पॉलिसी की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ या जितनी भी उसकी सक्सेस या फेलियर को जज करते हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस। सक्सेसफुल मॉनिटरिंग delivers timely and relevant information that allows you to track progress towards outcomes and make adjustment to implement arrangements as necessary. यानी जहाँ कहीं आपकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको प्रॉब्लम पेश आते हैं या कुछ कोई एक प्लान फेल हो जाता है, तो उसके लिए अल्टरनेट प्लान या उसके लिए अल्टरनेटिव या मुतबादल स्ट्रेटजी लाई जाती है ताकि वो पॉलिसी सही कामयाब तरीके से नाफिज हो सके। ट्रैक प्रोग्रेस इन द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक मैनर एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। यानी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो ट्रैक प्रोग्रेस है उसको माइलस्टोन्स के साथ मैच करना और उसके मुताबिक देखना कि ये सही हो रहा है या उसमें। सो इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग मस्ट डिफाइन द डाटा टू कलेक्ट, और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा डाटा हमने कलेक्ट करना है जिससे पता चले कि हम सही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द मेथड यूज फॉर मॉनिटरिंग, और वो मेथड जो हम यूज कर रहे हैं उसका भी हमें पता होना चाहिए। सो मॉनिटरिंग विल इन्फॉर्म अदर कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सच एज रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट हम किस हद तक कर पा रहे हैं। मसलन देखें, ये कोरोना के दौरान आपकी जो क्लासेस वगैरह ऑनलाइन बंद हो गई है और आपका रिस्क का आपकी फेलियर का रिस्क था, तो जो फेलियर का रिस्क था तो उसको पुर करने के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, क्योंकि रिस्क इसमें यह था कि आपका सेमेस्टर ज़ाया होने का ख़तरा था, जिस वजह से ये एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको हमने ऑनलाइन एक सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं। कोई इसमें अभी मसाइल हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वी विल सक्सेसफुल, हम आखिरकार इसको पे कामयाब हो जाएंगे। सो ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स नीड टू बी एंगेज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ टू बी सक्सेसफुल। यानी जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इसमें फ़र्ज़ करें तालीम है तो एजुकेशन है, तो इसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, उनकी कमेटियाँ होनी चाहिए जो इस सिलसिले में इन्वॉल्व हों। ऑल ओपन प्रोसेस दैट अलाउ स्टेक होल्डर्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज क्रेडिबिलिटी। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन का शेयर होना, ये उस प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी बताता है, ये बनता है। Dear students, now I will come to the process of policy evaluation in detail. So policy evaluation is the last step in the policy process or in planning process. It may ask deep and wide range questions such as was the problem correctly identified?
और वाज द करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, यानी जो प्रॉब्लम आपने पॉलिसी बनाने के लिए या जो प्लान बनाने के लिए जो आपने प्रॉब्लम या अपनी नीड आइडेंटिफाई की थी, क्या वो सही थी। नंबर 2, वर एनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ओवरलुक्ड, क्या कोई एस्पेक्ट या कोई शोबा रह तो नहीं गया, ओवरलुक तो नहीं हो गया। वर एनी इम्पोर्टेंट डाटा लेफ्ट आउट ऑफ द एनालिसिस, या फिर हम ये भी देखेंगे कि एनालिसिस में कोई इम्पोर्टेंट डाटा हमारी नज़रों से ओझल तो नहीं हो गया। डिड दिस इन्फ्लुएंस द एनालिसिस, जो इस एनालिसिस पर असरअंदाज हो सके। और वर रिकमेंडेशंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, और जो रिकमेंडेशंस दी गई थी वो क्या प्रॉपरली रिकमेंड की गई हैं। इज़ द पॉलिसी हैविंग द डिज़ायर्ड इफेक्ट, और जो पॉलिसी थी उसको नाफिज करने से मतलूबा नताइज हासिल हुए हैं। आर देयर एनी नीड्स फॉर मॉडिफिकेशन, चेंज और रीडिज़ाइन, या हम इस फीडबैक के नतीजे में हम देखेंगे कि क्या किसी मॉडिफिकेशन की, चेंज की या रीडिज़ाइन की ज़रूरत थी। सो व्हाट शुड बी डन डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, और अगली दफ़ा जब पॉलिसी बनेगी तो उसको हम इससे मुख्तलिफ अंदाज में किस तरह बनाएंगे। When policies fail, have to identify defects. It is usually due to one of the two types of failure. Number 1, theory failure और program failure, कि उस प्रोग्राम का जो बुनियादी फलसफा है, थेरी है, वो फेल हो जाए या प्रोग्राम फेल हो जाए। A theory failure occurs when the policy was implemented as intended but failed to have the desired effect. This may occur when, for example, a school adopts school uniform to curb violence in the schools, but the violence remains at the same level. यानी अगर एक स्कूल अपने यानी एक इदारा, एक स्कूल की मैनेजमेंट अपने स्कूल में वायलेंस को ख़त्म करने के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, यानी वो वायलेंस उसी तरह रहता है, तो ये उसकी, यानी इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ऐसा हुआ। द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड, यूनिफॉर्म्स वर अडॉप्टेड, बट द एक्सपेक्टेड चेंज डिड नॉट अकर। द theory that violence occurs due to style of dress is wrong. इसका मतलब ये साबित हो गया कि थी जो स्टाइल ऑफ ड्रेस की थेरी थी वो इस सिलसिले में रॉन्ग साबित हुई। सो देयर मस्ट बी सम अदर काज ऑफ स्कूल वायलेंस। सो हमें देखना पड़ेगा कि स्कूल की वायलेंस का कोई और काज है विच वुड रिक्वायर अ डिफरेंट पॉलिसी टू एड्रेस, यानी इस मसले को हल करने के लिए हमें कोई नई रीज़न की तलाश करनी पड़ेगी। एन इम्प्लीमेंटेशन फेलियर अकर्स व्हेन द पॉलिसी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एज इंटेंडेड, यानी जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त फेल होती है, उस वक्त भी फेल होती है जब वो पॉलिसी अपनी सही इंटेंशन के साथ नाफिज नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल में अडॉप्ट a uniform policy but majority of the students ignore it. The level of violence in school does not change. We still do not know whether adopting school uniforms would lower the level of violence in the schools. We only know what the uniforms were not adopted. अब इसको ये कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स को बॉयज स्टूडेंट्स के बराबर लाने के लिए गर्ल्स को स्टूडेंट्स को कुछ स्कॉलरशिप देती हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है उसको सही तौर पर नाफिज नहीं किया जाता, या नाफिज करने वाले लोग कुछ बेईमानी करते हैं या कुछ और, तो इसका मतलब है कि आपका वो प्रोजेक्ट या पॉलिसी नाकाम हो गई। लिहाजा उसकी जो भी रीज़न होगी उसको, यानी उसमें जो नाफिज करने वाले लोग थे उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, यानी इरादा ठीक नहीं था।
Dear students, now I will discuss the types of evaluation. Number one, formative evaluation. Number two, summative evaluation. Formative evaluation, if adequate monitoring process are in effect, यानी नफाज के दौरान, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान देखा जाए हर स्टेप को, हर माइलस्टोन को, so it should be fairly easy to detect whether a policy has been implemented as intended. यानी ये देखा जा सकता है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कि ये पॉलिसी उस तरह नाफिज की जा रही है जैसा कि इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसकी इंटेंशन थी. दिस टाइप ऑफ पॉलिसी मॉनिटरिंग हैज़ बिन रेफर्ड टू एज formative evaluation. Formative evaluation documents and analyze how policy is implemented. यानी जो formative evaluation है ये डॉक्यूमेंट करती है, ये राइट करती है, ये रिकॉर्ड सेव करती है कि पॉलिसी किस तरह नाफिज की गई, विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, के ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्रूव करने के मकासद को मद्देनज़र रखते हुए एज द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अनफोल्ड्स. जो ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की हम डिटेल से उसका एनालिसिस करते हैं. Summative evaluation is conducted after a program has been fully implemented. ये उस वक्त की जाती है कि जब कोई पॉलिसी या प्लान मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाता है और वो ख़त्म हो जाता है. ये जो समेटिव वैल्यूएशन है उस वक्त स्टार्ट होती है. इट लुक्स एट वेदर द प्रोग्राम इज मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इसमें देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स या मकासद को इस इम्प्लीमेंटेशन से या पॉलिसी ने पूरा किया है, या किस हद तक पूरा किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, एंड वाई और वाई नॉट. सो ये सारा इसमें हम देखते हैं. सो इवैल्यूएशन में बी अनपॉपुलर फॉर मैनी रीजंस. बहुत सी रीजंस की वजह से ये अनपॉपुलर हो सकती है. द प्रोग्राम इज कंट्रोवर्शियल. नंबर वन, यानी इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें रुकावटें हो सकती हैं इवैल्यूएशन में या पॉलिसी की इवैल्यूएशन में. नंबर इम्प्लीमेंटेशन में द प्रोग्राम इज कंट्रोवर्शियल, कि जो प्रोग्राम नाफिज किया गया वो कंट्रोवर्शियल था, यानी इख्तलाफी था. सो देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सीइंग इट सक्सेस और फेल. सो इसका मतलब है किसी भी पॉलिसी की कामयाबी या नाकामी में बहुत ज़्यादा इन्हिसार सियासी क़यादत की विल, यानी उनकी नीयत का है, या वो चाहती हैं कि ये पॉलिसी नाफिज हो या ना हो. तो इस सब का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है. सो देयर आर डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग प्रोग्राम अकम्पलिशमेंट्स, या आपको उस पॉलिसी को के जो प्रोग्राम्स हैं उनको की पैमाइश करने के लिए, उनको मैयर करने के लिए आपको मुश्किलात पेश आ रही हूँ. इसका मतलब है कि आपको के मेथड्स और टेक्निक ठीक ना हो, उनमें प्रॉब्लम हो, टूल्स में प्रॉब्लम हो. सो दोज इन्वॉल्व में बी अनकोऑपरेटिव, और वो जो लोग अगर अनकोऑपरेटिव भी हो सकते हैं इसमें. सो प्रोग्राम इफेक्ट्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड डेवलपमेंट्स. तो कुछ कानूनी डेवलपमेंट्स की वजह से आपके प्रोग्राम्स में पर असरअंदाज हो सकती हैं. Dear students, now I will come towards the evaluation design. कि evaluation किस तरह की है, उसका डिज़ाइन क्या है. So policy evaluation implies accepted social science or research methods to policy programs, to public programs. यानी ये वो पॉलिसी जो होती है वो एक सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होती है जो उस निज़ाम को गवर्न करने के लिए, एजुकेशन का निज़ाम है या एजुकेशन का सिस्टम है, उसको गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए हुकूमत की तरफ से या उस पॉलिसी बनाने वाले इदारे की तरफ से फराहम की जाती है. द सेम रिसर्च डिज़ाइन यूज इन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकेबल इन द फील्ड, बट द सेम प्रिंसिपल्स कैन गाइड द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन. मतलब ये है कि अगर आप पॉलिसी की इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसमें साइंसेस की तरह लेबॉर्ट्री रिसर्च नहीं हो सकती. इसमें सोशल रिसर्च आएगी. इसमें आप इंटरव्यूज करेंगे, फील्ड सर्वे करेंगे, फील्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे. सो बिफोर एंड आफ्टर इवैल्यूएशन
a policy is evaluated for changes it has produced since its implementation. The situation is controlled or to exclude other possible influences on the outcome. यानी पॉलिसी से पहले क्या सिचुएशन थी और पॉलिसी नाफिज करने के बाद क्या हालात हुए, इस सब का देखना. विद एंड विदाउट इवैल्यूएशन, अ पॉलिसी इज इवैल्यूएटेड फॉर प्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द टारगेट पॉपुलेशन compared to another population without the policy. So पॉलिसी के बगैर अगर हम, यानी इसमें कोई देखा जाता है ऐसा डाटा उसका, ऐसे शुमारियात का कि अगर हम पॉलिसी के बगैर ये सब करते या पॉलिसी के साथ करते तो दोनों किस्म के जो आदाद शुमार है उनका मुआजना करने के बाद हम फैसला करते कि आया ये पॉलिसी बनाने से कोई फ़ायदा हुआ या ना भी पॉलिसी बनाई जाती तो सिचुएशन में तब्दीली आ जानी थी. सो आफ्टर ओनली, तो इसमें ये होता है कि सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आफ्टर इवैल्यूएशन की जाती है. इवैल्यूएशन द एक्सटेंट टू विच द पॉलिसी गोल्स वर अचीव्ड. इवैल्यूएशन द एक्सटेंट टू विच द पॉलिसी गोल्स वर अचीव्ड, कि पॉलिसी के नतायज कैसे हासिल किए जाते हैं. कंपेयर द स्टेट अफेयर्स, यानी मौजूदा हालात से उनको मुआजना किया जाता है. बिफोर द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड, द पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले के. बट द सिचुएशन इज नॉट कंट्रोल टू एक्सक्लूड अदर पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस ऑन द आउटकम्स. यानी आउटकम्स पर जो बाहर से कुछ अवामिल असरअंदाज हो रहे थे उनको नहीं रोका गया है या नहीं रोका गया है. और टाइम सीरीज इवैल्यूएशन चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलिसी ट्रैक्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. तो यानी ये टाइम सीरीज डिज़ाइन होता है कि एवैल्यूएशन द चेंज प्रोसीड बाय द पॉलिसी, यानी चेंज जो अमल में आई गई है, लाई है, ट्रैक्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, वो लॉन्ग टाइम पीरियड पर मुहित है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके सामने पॉलिसी के लिए सक्सेसफुल की कंपोनेंट्स और फिर पॉलिसी के मुख्तलिफ पॉलिसी एवेल्यूशन और प्लान एवेल्यूशन के मुख्तलिफ जो उसके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये मैंने डिस्कस किए. और फिर उसमें एवेल्यूशन के डिज़ाइंस के बारे में बात की मैंने. और इस तरह डिटेल के साथ मैंने आपके साथ पॉलिसी इवैल्यूएशन, डिज़ाइन इवैल्यूएशन, पॉलिसी या प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये 3 चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस की हैं. और अब इस पॉलिसी, इस जो मेरी प्रेजेंटेशन है, इसके लिए दर्ज ज़ैल रेफरेंसेस हैं. ये रेफरेंसेस की स्लाइड है जिनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं. तो रेफरेंसेस, जिन चीज़ों से इसकी प्रेपरेशन के लिए फ़ायदा उठाया, तो ये आपके सामने है. और हम फिर किसी अगले यूनिट में किसी और टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगा. अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग.